मेरा एक सवाल है और and I want to ask about the Australian team because when it comes to that team, when it comes to Australia, you can never write them off, especially in an ICC tournament. And despite the fact that they did not have an ideal start in this tournament, yet they have managed to reach the finals. Do you think, Sababhai, and I'll come to both of you, Gushpaji and Vijay bhai, do you feel that India cannot take Australia likely in this final? Let's also have a look at the Australian likely playing 11 if we can request our director to fire the likely playing 11 and you can talk over it. Yeah. Yeah, well, Australia is such a fabulous side because of the fact that most of the players have been part of winning campaigns before. And I don't think India would make the mistake of taking this side lightly, especially in the World Cup final. And I think it's all boils down to your preparation and your execution of all the game plan that you have in mind. And I think it's equally important to visualize. And I think both the sides would be wanting to all that. But I think given the conditions that we have seen in the World Cup so far, wherever India has the kind of venue that India has played, I feel India's 11 or the combination that India has played with, they are far better equipped to do well in these conditions. Australia at times have faltered because the conditions have not been so favorable to them or they have not been able to adapt to these challenges. And I see the same kind of story being unfolded today in the final match also. Gushpaji, sanksep mein, haan. I think the first 10 overs are very crucial for Australia. If Australia, if they take 2-3 wickets in the first 10-12 overs. But in batting, I think this is more crucial. If they play well at 10, they don't lose wicket, then they have got a chance. Otherwise, I think India is very well equipped. If they lose 2-3 wickets, still we have got batsmen who can consolidate. जी विजय भाई आपके पास आता हूँ जरा एक बात हमें कहा जा रहा कि सिराज के फ्रेंड्स के पास चलते हैं वो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं अब सीधे हैदराबाद चलते हैं जी आप बताएं आप क्या करने वाले हैं आप लोग सिराज के दोस्त हैं उसके लिए क्या प्रार्थना करना चाहते हैं आज उसी का दिन हो सकता है हम लोग हमारे फ्रेंड्स पूरे मोहम्मद सिराज के फ्रेंड्स हैं जो भी हमारे पूरे फ्रेंड्स हैं ये और हम दुआ कर रहे हैं सिराज के लिए और टीम इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पर दरगाह शरीफ पर आकर सैयद अहमद बादे पाक फसलान सर में जो सिराज का घर है यहीं पीछे है पहले यहीं रहते थे सिराज पूरे लोग हम लोग दुआ करेंगे यही दरगाह है चादर चढ़ा रहे हैं सैयद अहमद बादे पाक जी हाँ चादर चढ़ा रहे हैं अभी ये पूरे फ्रेंड्स हैं ये It's a beautiful gesture by Mohammad Siraj's friends. चादर चढ़ा दिए है अभी फूल चढ़ाएंगे फिर दुआ करेंगे And playing for all of Team India. Thank you very much for showing us those visuals, beautiful visuals coming in from Hyderabad. Prayers from all across the country coming in for Team India. We have with us Badruddin ji, who's Mohammad Shami's coach. Badruddin ji, you know, ever since the World Cup began, hum baat kar rahe the, we've been talking about the healthy competition between Mohammad Shami and Mohammad Siraj. Kahin na kahin, Mohammad Shami edged out Siraj, you know, in the competition. And these are all talks that we have been doing in the studio. Tell us, you know, about how did you view this competition and how, you know, what it took for Shami to edge him out? देखिए कंपटीशन तो रहता ही है जब आप दो बॉलर कोई से जितने बॉलर आपकी टीम में रहते हैं तो कंपटीशन रहेगा लेकिन आप अच्छा करते आ रहे हैं जब तो अच्छा करेंगे तो आपको मौका मिलते रहेंगे ऐसा नहीं है और देखिए जब 3 बॉलर खेल रहे हैं तो हमारे साथ फास्ट बॉलर 3 हैं हमारे पास तो वो तीनों अच्छा करते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिराज की जगह शामी को खिलाना या शामी की जगह सिराज को खिलाना नहीं बनता था कहीं पे भी जो तीनों ही बॉलरों को खेलना चाहिए और जो शुरू में शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था वो मेरी नज़र में उसका नहीं बनता था उसकी जगह शामी को खिलाना चाहिए था मेरा अपना मानना ही है बाकी तो देखिए टीम के हिसाब से चलता है सब कुछ क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है क्या नहीं खिलाना है वो सब लोग जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है एक स्टोरी के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद शमी जब कोविड के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस किया यानी होन्ड हिज स्किल वो
बॉल्स शायद ओवरनाइट सोक करके रखते थे और अगले दिन वो गीले बॉल से बॉल करते थे। कुछ हमें बताइए उस बारे में कि व्हाट वाज ही एग्जैक्टली डूइंग। देखिए आजकल जो आईपीएल चल रहा है वो नाइट में मैचेस होते हैं, तो ड्यू होती है वहाँ पर, तो ड्यू में बॉल को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बॉल आपका ग्रिप नहीं होगा सही से। परेशानी होती है, स्पिनर को भी होती है, फास्ट बॉलर को भी होती है। तो उसी की प्रैक्टिस की है उसने, नाइट में अपना थोड़ा सा बॉल को गीला करके प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए की जाती है कि वो नाइट में आपको बॉल अच्छा ग्रिप हो जाए। जी मैं चाहूँगा कि वो सिराज का जो शॉट्स आ रहा है वो हमारे डायरेक्टर शिवानी आप दिखाएं। और मेरा अब सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है विजय भाई, क्रिकेट जो है वो सबको यूनाइट कर रहा है? ये कितना बड़ा फैक्टर है, जबकि हम एक एक बात पे डिसएग्री करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख के तो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप देखिए, थोड़ी देर पहले एक चर्चा हो रही थी कि क्यों सारे भारतीय समर्थक हैं वो सब एक ही लय में सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि भारतीय टीम जीतेगी। चाहे वो टीवी पे एक्सपर्ट्स बैठे हों, प्लेयर जो अपना काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आवाज़ बाहर जाती है ना, आपका प्रदर्शन, काफ़ी सारी चीज़ें एक स्टेटमेंट की तरह आती हैं वहाँ पर। और बहुत रेयरली हुआ है कि आपको 90% 95% एक ही पेज पे मिलते हो। नहीं तो इस देश में इतने सारे लोग हैं, कई बार सही चीज़ भी हो रही होती तो भी दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सब एक भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहते। तो स्पोर्ट्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रोल मॉडल के बारे में आप बात करते हैं या कोई स्टेटमेंट देने के बारे में बात करते हैं, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। भाई आपसे और बाजी आपसे भी रिएक्शन चाहूँगा इसमें। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से होता होगा, लेकिन अभी एक नई चीज़ मुझे लगी है। बाबा पर यही तो बड़प्पन है हमारे देश का। और स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके बारे में विजय ने भी कहा कि सबको जोड़ के रखता है, और ये एक टीम स्पोर्ट है। और इसमें अगर आप टीम के कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे, इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं, पर एक बार आप मैदान में उतर गए तो फिर आपकी कोशिश, आपका प्रयास यही होता है कि आप सब लोग मिलजुल कर मैच जीतने का प्रयास करें, जो कभी तक भारत ने किया है। और मुझे लगता है ये महानता है इस स्पोर्ट की। और अच्छी बात यह है कि इस तरह की एकजुटता हम लोगों को मैदान में नजर आती है, और उसी प्रकार की एकजुटता मैदान के बाहर भी फैंस में हमें देखने को मिल रही है। पुष्पा जी, ये टीम इंडिया को दर्शाता है, सब एकजुट होकर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और मैदान में भी इकट्ठे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अलग अलग धर्मों से, और कितना अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और इसको देख के यही लग रहा है कि क्रिकेट ही एक धर्म है हमारे देश में। ये जैसे देखो कि कितना कुछ जोड़ रहा है हमारे देश को, बहुत अच्छा लगा है देख। कुछ कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल। देखिए यही है, सबको एक कर देता है खेल जो रहता है। एक ही बॉटल से सारे लोग खिलाड़ी पानी पीते हैं, तो ये एक करने का ही काम है। और इसमें कोई धर्म का आड़े नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ भी ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। You see, the thing is, when you look at the pictures outside the stadium, it's a sea of blue. So everyone donning the same color, it basically gives you the idea of unity and the strength that India brings together when it. One religion that India has, pretty much, that's cricket. Absolutely. क्रिकेट की बातें कर ले, हम टॉस के नजदीक जाते जा रहे हैं। क्या हम शुरू करें? तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। सभा भाई, टॉस यहाँ पे क्या करेंगे? ये अब टॉस आपके हाथ में है नहीं। पिछली बार आपने टॉस जीता था तो पहले बॉलिंग किया था, इस बार क्या करें? मुझे लग रहा है कि टॉस ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मायने रखेगी। अगर वो टॉस जीतते हैं तो मुझे लगता है वो बैटिंग ही करेंगे। बट इंडिया के लिए अगर वो टॉस जीतते हैं या हारते हैं, जैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं बैटिंग में, पहले चेज़ करते हो या पहले बॉलिंग करते हो भी, क्योंकि हमारे पास अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है, अगर उनके 60-70 पे नो लॉस भी होता है, तब भी हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो मिडल ओवर में विकेट्स ले सकते हैं। बट अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने विकेट नहीं गिराए पहले 10-12 ओवर में, फिर मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं। सभा भाई, टॉस आपके हाथ में है नहीं। पिछली बार आपने जो है बॉलिंग किया था, इस बार क्या करेंगे? हाँ बाबा, पर सबसे बड़ी बात यही है, रोहित शर्मा ने कितनी बार ये कहा है कि ये एक टीम इतनी अच्छा खेल रही है कि टॉस आपके हक में जाता है कि नहीं जाता उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आपके विश्व कप के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व कप अगर आपको जीतना है, जो टॉस जिसके बारे में हम लोग सालों साल से बात करते आ रहे हैं, उस फैक्टर को आप हटा सा दें जो कि भारतीय टीम ने किया अपने प्रदर्शन से। पर हाँ, भारत ने अभी तक जो निर्णय लिया है, रोहित शर्मा जो निर्णय लिया है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है विकेट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली हमें रोहित शर्मा के डिसीजन में। इसी वजह से ये चूँकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो एक बार अभी विकेट की तो तस्वीर हमें देखने को मिली नहीं है, पर अगर इस विकेट में घास नहीं है तो मेरे विचार में दोनों टीम प्रेफर करेगी पहले बैटिंग करना, जिस तरह से भारत ने पिछले मैच में किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध।
मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए अभी? टॉस यदि जीत जाते हैं तो हार जाते हैं, तो देखिए जैसे कि मैं क्रिकेट अंपायर हूँ, स्टेट में 10 साल मुझे अंपायरिंग करते हुए हो गए हैं, क्रूशियल होगा, और 11-1200 मैचेस मैंने अंपायरिंग की है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी सिचुएशन में, और जैसे एक वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, तो उसमें चाहिए कि टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि आधी बॉल लगती है तो अंपायर कॉल क्यों होता है? मतलब बॉल लगी तो लगी, तो उसमें अंपायर कॉल में आपने उंगली उठाई तो होगा, नहीं उठाई तो नहीं होगा। मेरा मानना इतनी सी भी बॉल लगी तो लगी ना भाई। जी सर, वो इसका एक्चुअली क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर ये प्रिडिक्ट करता है। सॉफ्टवेयर इट इज़ नॉट 100% श्योर। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें लगता है ऑन फील्ड कि ही इज़ आउट, तो इसका मतलब ये है अगर उसमें टच करके भी जाए तो वो रियलाइजेशन का मैटर है कि वो रियलाइज कब हो रहा है, वो इससे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है एक कुछ आइडियल कंडीशन। मेरा सवाल नहीं है, लाखों लोगों का सवाल है, और मैं ये इसका जवाब लेके आया हूँ एक्चुअली। मुझे पता था मेरे सामने सवाल आएगा। इसमें एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक हमारे इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी। बट एज एन अंपायर ये मैं समझता हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जितनी देर के लिए बल्लेबाज को शॉट खेलने को मिलता है, उतने ही टाइम में अंपायर को डिसीजन देने के लिए मिलता है ना। बट हम आते हैं अंपायर्स कॉल पर। तो अंपायर्स कॉल का मतलब मैं पब्लिक को सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि अंपायर्स कॉल का मतलब ये है कि जो अंपायर ने डिसीजन दिया दैट इज अंपायर्स कॉल। वहां वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो ये बता रहा है कि अंपायर ने वो जो बॉलर ने बॉल डाली उसको रीड किया, और उसको रीड करके एक जो उसके अंदर पहले से ये प्रोग्रामिंग फिक्स है कि इस कंडीशन में बॉल सीम ऐसे होगी, बॉल पिच वहाँ होगी, तो वहाँ से बॉल प्रोबेबली मिस द हिट विकेट और द हिट द विकेट। बट इफ जब हम आते हैं उस पर अंपायर्स कॉल पर, तो वो 100% सॉफ्टवेयर हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। विजय भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले तो ये प्रोग्राम का नाम गूगली है, इसका मतलब ये नहीं आप गूगली डालेंगे। वो जो जवाब उन्होंने दिया है वो बहुत लिमिटेड है। और वो जिस फील्ड में है वो उसको पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि रूल के हिसाब से जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स भी वही बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आईसीसी इसकी तरफ वही तो मैं कहता हूं, बॉल लगी तो लगी, वही चाहते हैं सब, वही चाहते हैं कि अगर लगी और कितनी भी लगी हो, तो विकेट पे लग गई ना, तो वो डिसीजन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आधी लगी, पूरी लगी, चौथाई लगी, इससे क्या मतलब है? बाबा आईसीसी की जो रिव्यू कमेटी होती है उसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो हर साल इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और फिर रूल्स ना चेंज करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, और कहीं ना कहीं ये चेंज होगा। और अगर हल्की सी भी गेंद लग रही होगी तो वो फिर आप देखिएगा कि वो रूल बदलना पड़ेगा। सर तो बहुत लोग कह रहे हैं इस बात को, बट आई एम डिसएग्री अबाउट दैट। ठीक। Well, we've been talking about Team India and their preparations for the World Cup. I'm joined at this hour by Australian Consul from Bengaluru, Andrew Collister. Andrew, thank you very much for being a part of our show this afternoon. Well, rarely has it happened that Australia is getting into final of a World Cup as underdogs. How does it feel being in the underdog corner? Hi, Rika. Thanks for having me on. It's very relaxing, actually. I think, yes, as you said, Australia always expects, usually when we make a final, but being away, being in India, an extremely good Indian team, the pressure really feels off. And I think most of the people I've been talking to this morning are just excited to see what we can do in front of over 100,000 people. This is Osama from the NDTV studio. I also want to get your opinion on the fact that there are at least 5 players who were part of the 2015 World Cup winning team. They're also playing in this final. Do you think that is an advantage for Australia when it comes to the final in this match? Yeah, I think it can only help. That's pretty much the only other situation where you do have a final situation in front of nearly 100,000 people at the Melbourne Cricket Ground, which, of course, I was at home when everyone's supporting you, as opposed to being away when almost 100% of the crowd will be against them today. But to have that experience, to have handled that pressure, especially, and they chased that day as well, which they may have to chase today. I think that's really experience you can't fake, and you can't make anywhere else, which I suppose is for the Indian team the only real seed of doubt today, that they've got excellent players from 1 to 11. Can they handle that final today?
Andrew, we are talking about 100,000 fans at the Narendra Modi Stadium today, but when the Australian team plays in MCG against India, the colour isn't really different because you have 100,000 blue here, you have 100,000 blue in MCG as well. In that sense, would you say that the Australians will be used to the chants, used to the kind of pressure that they will be facing today? Yeah, it's a tribute to the marvellous Indian-Australian community that we have in Australia. They make a great contribution to our national life. I'd also bring Kolkata on Thursday. I was there. That was 65,000 fans, all firmly cheering for South Africa. So that was a very vocal crowd, and they handled it really well. Obviously, the game got pretty tight. It was pretty tense. But handling that semi-final situation, it should hopefully calm some of the nerves that they'll be facing today. Right. I also want to get your reaction, Andrew, on what Pat Cummins said. He basically said in his press conference that it would be great to shut down the noise of the 100,000 fans present in the stadium. This is. Do you think these are mind games played by the Australian captain, or do you feel he wants to motivate his team because he knows that it is going to be a pressure situation? I'd say it's probably more of the latter. Dare I say, it's a very common Australian soundbite to silence a hostile crowd. Australians have across the world, we're a team that everyone does enjoy beating. So, in England as well, silencing the crowd and kind of motivating his team that we're going to lift from the very start. So, if we're bowling first, Rohit Sharma hits 3-4s off the first over, that crowd's going to be up and roaring. But if we get a wicket off the first over, that crowd gets a bit unsure and it takes a bit of the power away, and it grows the players within. So I think you could say it's a bit of mind games to the crowd, but I think definitely motivating his own players. Well, let's have a quick prediction from you in terms of percentage. How much percentage do you give to Australia to win this match, the final match? You're putting him on the spot. Well done. On the spot, my head definitely says India. My heart will always say Australia. I think if Australia wins the toss and hopefully from my point of view bats first, I think we're looking about an even chance. Though I'll be honest, I think if India bats first, we're going to struggle. I'd put us down about 25% if we bowl first. But if we bat first, I'd give us a good 50-50. Well, thank you very much, Andrew, for joining us on the broadcast. Well, Andrew, Baba is saying that you being a diplomat, you have perfectly played your role there. And thank you very much. Yes, he said... I have to live here for 3 more years, Rick. We'll let you go and enjoy the game. Thank you very much for joining us on the broadcast this afternoon. With that, a quick break on the show. More on the other side. Stay tuned. A cup of hope. A cup of joy. Can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country. Through every twists and turns. On Turning Point, on NDTV 24/7. But sometimes the experience is not really great, especially in the terms of printers. जब आपको एक important print निकालना होता है and you realize that the ink is over, the cartridge is finished. वो experience I know it's very painful because you have a printer lying next to you but it's not usable. Now I'll tell you what. आप अगर एक अलग type का font use करते हैं ना, a font which is kind of thinner, तो आप इंक बचा सकते हैं. As much as up to 10 to 15% of ink you can save in a longer run if you just change your font and change the font size. तो अगर आप अभी देखते हो कि आपको casually बहुत सारे prints निकालने हैं and you are using a thicker font, just change it so that आपको emergency में जो print निकालना पड़े तो आपकी ink खत्म ना हो, आप पैसे बचाएंगे और अपना जो काम है you'll make sure that you'll not ruin that just because of a printout which you can't take. As World Cup final grips India, NDTV is bringing together coaches, die-hard fans, comedians and a young cricket team to celebrate the cricket carnival from the cities and homes of the playing 11 to our studios. Cheer for India with us.
as match, music and masti comes to life. All day on NDTV. Hello, Namaste and Salam UAE. We are here to celebrate exceptional success stories of leading individuals in the realty industry across UAE. The Realty Awards, brought to you by NKN Media in partnership with NDTV, will also provide a vision for the realty landscape in UAE. Coming soon only on NDTV. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. A cup of hope. A cup of joy. Can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country. Through every twists and turns. On Turning Point, on it. Welcome back. It is the big final between India and Australia at the Narendra Modi Stadium. It is going to start in just a short while from now. We'll be talking about that match. We'll be getting reactions from all over. And let's quickly go across to Panchkula, which is Shubman Gill's hometown. And let's see what is happening there. Our colleague Umang is there to get us the latest. उमंग बताइए क्या हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला में, जहां आज इस महाकुंभ के लिए, आज इस महात्योहार के लिए, एक महाआयोजन के लिए देखिए अनुष्ठान, एक बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से ये हवन जारी है पंचकुला में। आपको बता दें शुभमन गिल जो है उनका गृह क्षेत्र है, और ऐसे में यहाँ पर आज भारत की जीत के लिए वर्ल्ड कप 2023 के लिए आज यहाँ तैयारी जो है, किस तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। ये तमाम जो उनके फैन हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इनके हाथ में तिरंगा है, शुभमन गिल का फोटो है, पोस्टर है, ये सभी इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आज शुभमन गिल एक बसा हुआ है, और इनका रोम रोम जो चाहता है कि आज भारत की जीत हो, जिसको लेकर इन्होंने आज यहाँ पर ये हवन रखा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आज नीली जर्सी वालों को ये दिखाना होगा आसमान को कि जीत कैसे हासिल की जाती है। और आज उसी को लेकर आज जो ऐतिहासिक मैच होना है भारत में, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसको लेकर सबकी धड़कनें तेज है। करोड़ों क्रिकेट फैन है जिनकी धड़कनें तेज हो रखी हैं, और इस वक्त यहाँ पर पंचकुला में शुभमन गिल, बहुत उम्मीदें हैं। मैच के बाद भी होने वाला है। आज मैच है, फाइनल मैच, तो हमारा कल से यहाँ पे हवन चल रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। हमें पता है कि डेफिनेटली आज इंडिया विन करेगा। 20 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, तो आज वही मौके की इंडिया पे बदला लेने का मौका अच्छा है। हमें पक्का यकीन है कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। शुभमन गिल को क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बहुत बड़े फैन हैं, आपके शहर से हैं वो। हाँ जी, शुभमन गिल हमें पता है कि ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे है। इन वर्ल्ड कप में इस बार परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहे, तो डेफिनेटली बात वो सेंचुरी स्कोर करेंगे। एंड विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर,
एंड बॉलिंग में आप शमी की बात कीजिए या जसप्रीत बुमराह, सभी अच्छी फॉर्म में है, तो डेफिनेटली जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा सभी अच्छी फॉर्म में है और शुभमन गिल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपका नाम? मेरा नाम नितिन है। मैं भी चाहता हूँ कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और ये 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके बाद एक अच्छा मौका है इंडिया के पास। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और इससे बेहतरीन मौका इंडिया के पास नहीं हो सकता वर्ल्ड कप जीतने का। पूरा देश वेट कर रहा है इस चीज के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमंग। और पाजी आप बताइए, बढ़िया करेगा आज सुमन? बहुत बढ़िया करेगा। ये बोल दो कुछ कि आज मैच जीतेगा, तुमको भांगड़ा करना है, कोई करे या ना करे। नहीं, मैं करूंगा, मैं पक्का करूंगा भंगड़ा, और आज मुझे लग रहा है मैं भंगड़ा करूंगा, हम जीत ही जाएंगे, हम जरूर जीतेंगे। तो घुस पाजी ने नेशनल टेलीविजन पे कह दिया है कि आज जीता इंडिया तो भंगड़ा करेंगे। हम सारे भंगड़ा करेंगे, हम सारे करेंगे। हम ब्रेक में जा रहे हैं क्या? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ताबीस आ गए हैं। ताबीस जो है कुछ यहाँ पे हमारे साथ क्रिकेटर्स भी हैं और कादिमनी भी है, उन सबसे बात करेंगे।